नेक्स्ट कम टू द कंप्लेंट 2D, सेक्शन 2D। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हर लाइन से। देखिए कैसे बनता है। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आप लोगों को। जो चिन्मय साहब हैं, चिन्मय साहब, ही हैज सम ग्रीवेंस अगेंस्ट समबडी। इनको कुछ, इनकी अपनी दुखी की गाथा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कि किसी व्यक्ति ने इनके विरुद्ध कोई अपराध किया है। एंड नाउ ही अप्रोचेस टू द पुलिस ऑफिसर। Then he tries that his complaint should be lodged, FIR should be registered, in the case be investigated. He approaches to the police officer. Then he tries that his complaint should be lodged, FIR should be registered, in the case be investigated, charge should be filed against the accused, they may be arrested, like this. It is his expectation. But nobody is listening him. तो what is the option for him? और रेमेडी के साथ साथ उसका ये भी रेमेडी है, यू कैन डायरेक्टली फाइल ए कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। आप एक मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो व्हेन यू आर मेकिंग एलिगेशन, यू आर मेकिंग एलिगेशन टू व्हाट? टू द मजिस्ट्रेट। तो वी उसको जो एलिगेशन है, वी कॉल दैट कंप्लेंट। तो कंप्लेंट इज ऑलवेज मेड टू द मजिस्ट्रेट। डोंट get confused that complaint is made to the police officer. In technical language, in legal language, complaint is filed with the magistrate. Number one, whether it is necessary that it must be in written every time, no, it may be oral and it may be in writing as well. This is the question for your prelims, कि एक complaint may be oral, एक और complaint may be in writing. Option is it may be oral or it may be in writing. So this is the first. It is in the form of allegations. It is made to the magistrate. It may be made orally or it may be made in writing. And then this is very important. What is this? With a view to his taking action under this code. Now what is the purpose of allegation? The purpose is not simply वो अपना दिल हल्का कर रहे हैं आप। दिल हल्का करने वाली बात नहीं है। आपके पास आपके मतलब आपके मान लीजिए जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वो पापा के पास गए, बता देंगे आप बड़े भैया ने बहुत पिटाई करी है। तो दिस इज सिंपली सेइंग समथिंग। बट इफ ही सेज प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, मुझे बहुत मारता है वो, मुझे बहुत मारती है दीदी, आप समझाइए, आप सही कीजिए उनको। सो नाउ ही इज व्हाट विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन। So allegation must be not simply saying something, it must be with a view to taking action under this code, that you should request the magistrate that please sir take some action as per law, and this is the complaint. Otherwise it will not treated as complaint if you don't request for the action. तो प्लीज सीधा डायरेक्ट अगेन मैं आपको फिर हाईलाइट करता हूँ उसको, जिन पॉइंट्स को मैंने समझाया है। इट इज मीन्स एनी एलिगेशन may be orally or in writing, it made to magistrate and with a view to taking his action against and under this code. ठीक है, next part इसका that, and what is the allegation? That some person कोई व्यक्ति, यहां से फिर क्वेश्चन बनता है इसमें, known or unknown has committed an offense but does not include a police report. ये ध्यान रखिए। Now in this allegation you are saying, what you are saying, that some person has committed an offense. किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। तो it is also not necessary कि you must be knowing that कि किसने किया है अपराध, it is not necessary. He may be known or he may be unknown. The complaint may be made orally, complaint may be made in writing, है ना। But the only thing is that you must request that the magistrate should take an action in that case. And लास्ट की लाइन है, बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। एंड ये इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट को हम लोग आम भाषा में कहते हैं चार्जशीट, उसको भी समझ लीजिए। प्लीज गो टू सेक्शन 2R। दिस इज सेक्शन 2R, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट means a report forwarded by police officer
टू मजिस्ट्रेट अंडर 173(2). ये समझिए 2R में डिफाइंड है ये पुलिस रिपोर्ट। व्हाट इट इज दिस? देखिए FIR रजिस्टर्ड हुई, FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 154 CRPC। इन्वेस्टिगेशन यहां से स्टार्ट होगी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। द केस इज द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद द फाइलिंग ऑफ FIR, then it culminates with the filing of charge sheet। क्या मतलब? पुलिस के पास आपने रिपोर्ट की, जनाब मेरे साथ मार पिटाई हुई, मेरे घर में चोरी हो गई, डकैती हुई, ऐसा हो गया। पुलिस ऑफिसर आपके FIR लिख लेंगे और फिर वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस खत्म हो जाएगा, तब वो डॉक्यूमेंट को कंपाइल करके फिर वो एक रिपोर्ट के रूप में सेक्शन 173 में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे उसको। उसे कहते हैं फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। उस रिपोर्ट को जो फाइल बना के दी जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने कि ये हमारे पास FIR दी, हमने केस की इन्वेस्टिगेशन की, हमने 10 गवाहों का बयान लिखे, हमने ये एविडेंस कलेक्ट किए हैं, 9 आपकी सेवाएं प्रसिद्ध हैं, इनके अनुसार फला फला व्यक्ति ने अपराध किया हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपने उसमें चार्जशीट फाइल कर दी, उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। अब क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट किसको फाइल हो रही है? मजिस्ट्रेट को फाइल हो रही है। इस रिपोर्ट में भी क्या है? एलिगेशंस लगाए गए हैं कि फला फला व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। तो ये बेसिकली सभी इंग्रेडिएंट्स को सेक्शन 2D के सभी इंग्रेडिएंट्स को कवर कर रहा है। इट इज पुलिस रिपोर्ट जो है 173 में जो रिपोर्ट है 173(2) में जो रिपोर्ट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिगेशन, इट इज इन राइटिंग, इट इज टू मजिस्ट्रेट एंड उसमें कहा गया कि प्लीज टेक एक्शन, ठीक है नहीं, और उसमें बताया गया कि सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। तो पुलिस रिपोर्ट इन इटसेल्फ आल्सो फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ कंप्लेंट, बट इसीलिए स्पेसिफिकली उसको कंप्लेंट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। बट इट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट बिकॉज ट्रायल प्रोसेस डिफरेंट है दोनों का। आप देखेंगे वारंट केस के ट्रायल में कि ट्रायल ऑफ द पुलिस रिपोर्ट केसेस एंड ट्रायल ऑफ द अदर केसेस प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट है। वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिन केसेस का ट्रायल होता है उसका प्रोसीजर अलग होगा, और जो कंप्लेंट केस के बेस पे चलेंगे केसेस उनका प्रोसीजर दूसरा होगा। इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि इट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, और यहीं से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। हाँ या ना? जल्दी बताइए, समझ में आई कहानी? जल्दी से। जेबा मैडम, चिन्मय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, यहां से क्वेश्चन आता है। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation that the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। शब्द क्या है? deemed to be a complaint। अगेन ध्यान रखिए इसमें क्या है, ये क्या सिचुएशन है? गए थे केस को इन्वेस्टिगेट करने, FIR रजिस्टर्ड हुई, केस को इन्वेस्टिगेट किया गया, और केस को इन्वेस्टिगेट क्या सोच के किया गया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, यही सोच करके FIR दर्ज हुई और यही सोच करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन कंक्लूजन ये निकला इन्वेस्टिगेशन का, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट डिस्क्लोजेस द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि नहीं इट इज नॉट द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो जो रिपोर्ट अब होगी, रिपोर्ट बाय हूम? रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट फाइल करेगा उस केस को हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग डीम्ड टू बी कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट माना जाएगा। वो क्या है? बेसिकली वो भी पुलिस रिपोर्ट है, लेकिन एज ए स्पेशल केस द केस वाज इन्वेस्टिगेटेड, इट केम आउट दैट दिस इज रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देयरफॉर दैट रिपोर्ट शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? एज द कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट। उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा पुलिस ऑफिसर को, और उस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा? कंप्लेंट मान लिया जाएगा उसको। बोलो हाँ या ना? शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट है नहीं वो, लेकिन कंप्लेंट उसको मान लिया जाएगा, दैट शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट। बोलो हाँ या ना?